हरे कृष्णा। Please join us today. We will be discussing, हम लोग चर्चा करेंगे some important lessons जो भगवद गीता में दिए हुए हैं और उनको हम कैसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं. So we will see how we can practice these various aspects that we learn, जो हम सीखते हैं भगवद गीता से, उसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है. प्लीज जॉइन अस फॉर जय राधा माधव प्रेयर्स. जय राधा माधव प्रेयर्स में हमारे साथ आइए. हरे कृष्णा.
Krishna, dear devotees. के साथ आप गुरु प्रणति के लिए हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे इट इज अबाउट ग्लोरिफिकेशन। गीता के ग्लोरिफिकेशन से रिलेटेड है, गीता महात्म्य से। और इसको अगेन पेइंग obeisances टू गुरु साधु एंड शास्त्र एंड obeisances टू Srila Prabhupada. We are all starting today's session and seeking blessings for from the senior Vaishnavas and also focusing on today's topic where how we can practice Gita in our life, right? Gita means Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita means Song of God. Right? भगवान कृष्ण ने जब ये अर्जुन को सुनाया ये गीत उनका ट्रांसडेंटल आध्यात्मिक गीत ऑन द बैटलफील्ड एट कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे। सो आदि शंकराचार्य and among the Vaishnavas we refer to him Shripad. So we consider him because he is an incarnation of Lord Shiva and he glorifies Gita. And there is a common misconception, and of course we hear from Shastras that it was Lord Shiva telling Parvati that to bewilder the fallen conditioned souls, who are not taking to the devotion service, he is going to spread this knowledge of impersonalism. So he spread this knowledge of impersonalism, yet at the same time his conclusion was Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Moolamate. So again we have to engage in devotional service of who? Lord Shri Krishna, Govinda, one who gives pleasure to the senses, pleasure to the cows. And how do we know that Lord Krishna is also named Govinda? Sometimes people even ask that. They say, no, he is talking about Govinda, the one who gives pleasure to the senses. So he describes very nicely, it is described in Brahma Samhita. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarva Karana Karanam. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Right? Ishvara Paramaha Krishna, Satchidananda Vigraha, and he is a beautiful form of Satchit and Anand. He is an eternal body full of knowledge and bliss. And Anadir Adir Govinda, there is no one older than him, Anadir. And Adi, he is the oldest person, and who is known as Govinda, the one who gives pleasure to the senses, pleasure to the cows. And Sarva Karan Karanam, और सब कारणों के कारण है. Right? He is the original seed. He is the origin of everything. तो उस तरह से तो उन्होंने गीता महात्म्य जो उन्होंने 7 वर्सेस लिखी हैं उसमें से 7th वर्स जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव. किन्होंने? आदि शंकराचार्य ने, श्रीपद आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में लिखा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा. He is glorifying. He is telling us 4 important aspects, right? And what are these 4 important aspects? If there is one scripture
in this world that has to be studied. If you have only one scripture to study to attain perfection in life, then you should study the Bhagavad Gita, which was sung by none other than Lord Shri Krishna. Devaki Putra Geetam. So this is referring to the song that was sung by Devaki Putra, Vasudeva Krishna, at the battlefield at Kurukshetra. So, Bhagavad Gita is glorified in the very beginning. He is identifying that we should all read this scripture. It is going to cause a revolution. हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी भगवद गीता. And एको देवो devaki putra eva. There is no other deva. If you have to worship one personality, then we should worship Lord Shri Krishna. Eko mantras tasya namani ani. So if you have to chant one mantra, then chant his holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Karmapyekam tasya devasya seva. If you have to do any activity, we can do activities by three ways, right? Mind, body and words. And when we switch them, body, mind and words, it becomes BMW. So you all own a BMW, provided are you running the BMW in the right direction? Are you engaging in serving Lord Shri Krishna? And that is referring to bhaj. Bhaj is bigger than worship, right? Puja is worship. Archana is worship. But bhaj is devotional service. Bhaj Govindam. So that word bhaj, it refers to bhakti. It refers to devotional service. Bhakti, जिस तरह से भक्त भगवान की सेवा में तल्लीन होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है. And it is for everyone. Lord Krishna, he declares in Bhagavad Gita, right? This is Bhagavad Gita, this is Gita Jayanti month, and just 5 days from now, we'll be observing the specific day where 5,156 years back, Lord Krishna himself spoke Bhagavad Gita to Arjuna. And that is such a wonderful literature, it's such a wonderful song that if we love to sing songs, right? We love to hear songs. और ऐसा गीत जो कि मन को भावे, जो आत्मा को संतुष्ट करे, जो हमारे पूरे शरीर को आनंदमय कर दे, ऐसा सॉन्ग भगवद गीता है. We should take to reading Bhagavad Gita. This is for our benefit. It is written for our benefit. व्यासदेव ने महाभारत जब लिखी थी, और महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता के 18 अध्याय आते हैं, 18 chapters हैं उसमें. तो वो महाभारत was written for this age, for the Kali age, so that people who are even not so educated, they can hear. There is no qualification needed to read Bhagavad Gita. There is no expertise needed to read Bhagavad Gita. The only requirement is that we should be hearing Bhagavad Gita with a surrendered mind, with faith that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he is singing this Bhagavad Gita to his friend, to Arjuna. Right? वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस गीता को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे प्रिय मित्र हो. Even though they were first cousins, still he is not calling out that relationship with the body. He is saying कि मन का भाव कैसा है. ऐसे कहने को तो दुर्योधन और युधिष्ठिर भी cousins थे, लेकिन कितने opposite direction में थे. Duryodhan was always thinking of hurting Yudhishthir. He wanted to kill the Pandavas along with Queen Kunti. And Yudhishthir was always looking for Duryodhan's benefit, trying to pacify him, trying to see him as a brother, trying to see him as a living entity. And Jivera Sarup Hoya Krishna Nityadas. Sometimes people ask, okay, Prabhu, how many devotees do you know? And we say that actually we only see devotees in this world. Everyone is a devotee of the Lord. Jivera Sarupoya Krishnera Nityadas. Everyone is an eternal servant of Lord Shri Krishna. Some know it, some don't. That's the difference. कुछ जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भ्रमण कर रहे हैं. Right? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. So it is said in the Shastras that living entities, जो
आत्माएं हैं वो इस ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रही हैं लाइक फेरिस व्हील। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल, हवाई झूले के जैसे। कभी ऊपर जाते हैं हेवनली प्लैनेट्स पे, फिर कभी नीचे आते हैं पाताल में, कभी बीच में अटक जाते हैं पृथ्वी लोक में, राइट, अर्ली प्लैनेट्स में। लेकिन वो इसी में लगे हुए हैं, ऊपर नीचे कंटिन्यूसली एंडीवर कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? मिजरी आफ्टर मिजरी आफ्टर मिजरी, एंग्जाइटी आफ्टर एंग्जाइटी आफ्टर एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड ग्रोइंग स्ट्रेस, growing uncertainty. Nothing is predictable in this world because the nature of this world is dukkhalayam ashashvatam. This world is a place of misery, right? Dukh alay. So alay refers to a place of. Just say vidyalay, where you get knowledge, that is vidyalay. Or where you get bhojan is called bhojanalay. Similarly, where you get dukh is called dukkhalay. It is not a sukhalay. But everyone is seeking pleasure. So this is where we are running after mirage. और लॉर्ड कृष्णा यही नॉलेज अर्जुन को बता रहे हैं कि हाउ वी कैन टेक टू डिवोशनल सर्विस एंड कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा. सो अगेन दिस इज डिवोशनल सर्विस. श्रीपद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि अगर कोई सेवा करनी है, अगर कोई एक्टिविटी में एंगेज करना है, तो वो भगवान की भक्ति में है. भज गोविंदम. ही इज कॉलिंग आउट टू यू, टू मी, एंड ऑल द आचार्यस in the sampradaya, they are also calling out, and Krishna himself is revealing this knowledge. And in Srimad Bhagavatam, sometimes people say, okay, ये भक्ति जो है ना, ये हम लोग तब करेंगे जब रिटायर हो जाएंगे, जॉब वगैरह खत्म होके बच्चे बड़े हो जाएं, सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, तब करेंगे. अरे then we won't be able to see properly. किंग कुलश्रेष्ठ भगवान के सामने आके प्रार्थना करते हैं कि भगवान, इस समय मेरा शरीर बलशाली है, इस समय मेरी आंखों का तेज अच्छा है, इस समय मेरे बाहु अच्छी तरह काम कर सकते हैं, इस समय मैं बिल्कुल पूरे यौवन में हूँ, और यही समय है कि मुझे आपकी भक्ति का फल चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए. I want to engage in your devotional service. He is calling out. Why? Because जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, पहली बात तो ये है कि it is very difficult to learn something when you are old. Then our senses जो होते हैं वो weak पड़ जाते हैं. अब जब senses weak पड़ जाते हैं, how can we take to bhakti that is completely opposite nature of the karmi nature that we are acquiring? It is like saying, I will continue to do bad things, and finally when I am tired, and I am not able to do even bad things, then I will do good things. That is not intelligence. ये समझदार व्यक्ति का सोचना नहीं है. हम लोग सब समझदार हैं. हमें प्रॉपरली कंटेम्पलेट करना चाहिए, हमें प्रॉपर विचार करना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है, और कॉमन मिसकंसेप्शंस रिमूव करने चाहिए. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये जो भक्ति है ये सबके लिए है. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर भक्तास बट एवरीवन, सारे लिविंग एंटिटीज. अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषं परम. अकाम, अगर किसी के पास कोई अपने डिज़ायर भी नहीं है, कोई काम इच्छा भी नहीं है, नो फीलिंग टू सेटिस्फाई द सेंसेस, टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, वैसा व्यक्ति जिसको कोई काम नहीं है, जो कि भक्त है, तो कामनाएं तो सभी को होती हैं, लेकिन ऐसी कामना, ऐसी डिज़ायर नहीं है टू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन. रादर जो फीलिंग है, जो डिज़ायर्स हैं, दे आर टू सर्व लॉर्ड श्री कृष्ण. सो दैट इज अकामा. सर्व कामोवा, एंड जस्ट उसका 180 डिग्रीज ऑल डिज़ायर्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड. जो लिविंग एंटिटी है हु वांट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिक जगत में अपनी तृप्ति करना चाहता है सेंसेस की, अपने को एंजॉय करना चाहता है, ऑल काइंड ऑफ एंजॉयमेंट में लगना चाहता है. और फिर एक और कैटेगरी आती है मोक्ष कामा, जिसकी डिज़ायर अमंग ऑल द कामर्स ऑफ एंजॉयमेंट टॉप मोस्ट है, कि वो सेल्वेशन चाहता है, लिबरेशन चाहता है, ब्रह्मणवादी है, भगवान के ब्रह्मन जो एफल्जेंस है उसमें मर्ज करके सोचता है कि वो भगवान बन जाएगा. दैट इज़ द टॉप मोस्ट डिज़ायर. एंड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ही इज़ अ बिग ऑफेंडर. सो इवन सच एन ऑफेंडर, राइट, जो कि सोचता है कि मैं भगवान बन जाऊं,
right? Sarva kama, moksha kama. Tivrena bhakti yogena. Tivrena means with great enthusiasm, with great determination, with great energy. He should do what? Bhakti yogena. He should engage in devotional service. और whose devotional service? Who should be devoted to? किसकी भक्ति करना चाहिए? यज्जते पुरुषम परम. He should, engage in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Enjoyer, who is Abhigya Swarad, who knows everything, who is cognizant of all happenings in this material world and spiritual world, directly and indirectly, and one who is independent. So these are the characteristics that have been identified. So भगवद गीता हम सबके लिए है. अब फिर कुछ लेसन्स जो आज हम लोग लेके आए हैं उनको डिस्कस करेंगे. कॉमन मिसकंसेप्शन से रिलेटेड है. सो समटाइम्स दिस मिसकंसेप्शन कि हम जिस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, द कास्ट सिस्टम, हाउ इट इज़ evil, and there are various stories in the Shastras that we learn that this is something that is covering our sight, just like the clouds cover our sight to see the sun. They are covering, they are like motiabin jaise hain, they are like the disease of the eye, and we cannot see if your eyes are diseased. So this is where we have to purify ourselves, remove the disease, and then we can see things properly. तो एक जो ब्राह्मण था वो दिन रात भगवान की पूजा में लगा रहता था, और वहीं पे एक चमार भी काम करता था पास में. वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपना मोची अपना काम करता था, जूते सिलता था, लोगों के जूते पॉलिश करता था. वैसे एक बार देवर्षि नारद आए भ्रमण करते हुए. वो तो कहीं पे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड आराम से घूम सकते हैं. भगवान की उनको ऐसी आशीर्वाद प्राप्त है. सो ही इज़ आ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन. तो वो आए टेम्पल पे, ब्राह्मण को देख के बहुत खुश हुए. तो ब्राह्मण से मिले तो ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो देवर्षि नारद हैं. उसने इमीडिएटली ओबीसेंसेस पे किया एंड बोला कि देवर्षि नारद आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, राइट? यहाँ पे आए, बहुत अच्छा हुआ. उन्होंने उनकी स्तुति भी करी. और उसके बाद में देवर्षि नारद बोलते हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने. बोलते हैं अरे भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि मैं अगले जन्म में मेरा क्या होगा, क्या मैं वापस आ जाऊँगा, वैकुंठ में वापस आ जाऊँगा मैं? तो बोलते हैं ठीक है मैं पूछ लूँगा. अब ऐसे ही वो जैसे ही निकले टेम्पल से, ज़रा आगे गए तो जो मोची था, द कॉबलर, ही इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने देखा, मोची ने, चमा ने, कि देवर्षि नारद जा रहे हैं, तो उसने दूर से ही स्तुति करी उनकी. और फिर देवर्षि नारद बड़े अट्रैक्ट हुए. अरे भाई ये बंदा, ये तो बहुत अच्छा है, जानता है भगवान को. तो वो पूछता है कि आपके दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा, आप कहाँ जा रहे हैं? अब जस्ट बाय कोइंसिडेंस उसने भी वही क्वेश्चन पूछा. तो देवर्षि नारद बोलते हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान विष्णु के दर्शन करने. तो बोलते हैं अरे आप भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे? अरे वो तो बड़े कृपालु हैं, वो तो बहुत ही दानवीर हैं. सो आप उनसे ये पूछेंगे कि मेरा क्या होगा इस जन्म के बाद? तो बोलते हैं ठीक है मैं पूछ लूँगा. वो सोचते हैं कि ठीक है, ब्राह्मण ने भी बोला है, इसका भी पूछ लूँगा. अब वो जब जाते हैं वैकुंठ में लॉर्ड विष्णु के पास, भगवान की स्तुति करते हुए उनको प्रसन्न करते हैं, और भगवान पूछते हैं कि देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? तो अपना तात्पर्य बताते हैं, अपना मोटिव बताते हैं कि क्यों आना चाहते थे. फिर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली मेरे को 2 प्रश्न भी पूछने हैं. एक तो है वो ब्राह्मण की तरफ से, वो जानना चाहते हैं वो इस जन्म के बाद वो कब आ पाएगा, वैकुंठ में कब प्रवेश कर पाएगा, वो कब आपके धाम को प्राप्त करेगा, व्हेन विल ही बी एबल टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड. लॉर्ड विष्णु बोलते हैं आफ्टर मिलियन ईयर्स, 10 लाख साल के बाद. वो शॉक्ड रह जाते हैं. अरे वो सोचते हैं कि वो ब्राह्मण तो दिन रात इन भगवान की पूजा करता है और उसको इतना समय लगेगा. एक्चुअली वेदास में, अपने शास्त्र में तो लिखा है करोड़ों जन्मों के बाद. सो दैट्स लाइक 10 मिलियन ईयर्स. फिर बोलते हैं पूछो कि नहीं पूछो. फिर पूछ लेते हैं कि वो जो मोची है कॉबलर, वो भी जानना चाहता है कि वो कब आ पाएगा भगवत धाम को, कब प्राप्त करेगा. भगवान मुस्कुराते हैं सुनते ही, बोलते हैं वो तो इस जीवन के बाद ही आ जाएगा. देवर्षि नारद कंफ्यूज्ड. अरे वो तो ब्राह्मण जो है वो तो दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, वो नहीं आ पाएगा 1 करोड़ जन्मों तक.
और ये जो कॉबलर है, जो चमार है, जो मोची है, वो एक इस जन्म के बाद ही आ जाएगा। वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है प्रभु, मेरी इस विडंबना को, मेरे इस कंफ्यूजन को, इस बिविल्डरमेंट को दूर करिए। भगवान विष्णु कहते हैं तुम बस उनको ये बताना कि मैं इस समय क्या कर रहा था, तुम्हें सब अपने आप पता लग जाएगा। देवर्षि नारद वापस जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो ब्राह्मण पूछता है कि भगवान ने क्या किया, आप उनसे मिले? बोलते हैं यस, मैं गया था वैकुंठ, उनसे मिला, उन्होंने कहा कि तुम 1 करोड़ जन्मों के बाद में वापस वैकुंठ की प्राप्ति करोगे। अब ब्राह्मण बोलते हैं आप कोई वैकुंठ वगैरह नहीं गए, आप कोई भगवान विष्णु से नहीं मिले, आप तो बस मेरी ऐसी टांग खींच रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्टिंग लगे। तो देवर्षि नारद वाज शॉक्ड, वो बोलते हैं अरे मैं इसको सच बता रहा हूँ, ये तो मानता नहीं है। सोचते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण को पूछता है अच्छा ये बताइए भगवान कर क्या रहे थे उस समय? तो देवर्षि नारद बोलते हैं भगवान एक सुई की आंख से हाथी को निकाल रहे थे। अब तो ब्राह्मण हंसने लगता है, बोलता है आप तो कुछ भी बोलते हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। सुई की आंख से कोई छेद से कोई हाथी निकाल सकता है उस जरा से छेद से? आप कोई वैकुंठा नहीं गए थे। और फिर अपने काम में लग जाता है। देवर्षि नारद बड़े अचंभित हो जाते हैं, बड़े आश्चर्यपूर्वक तरीके से देखते हैं कि ब्राह्मण को तो कोई विश्वास ही नहीं है, इसकी तो श्रद्धा ही बहुत वीक है। कोई बात नहीं, निकलते हैं और वापस जा रहे होते हैं तो वो कॉबलर से मिलते हैं, जो चमार होता है ना, मोची, जो जिसने भी पूछा था पहले, तो उसके पास आते हैं। तो मोची उनको देखते ही दंडवत प्रणाम करता है, उनकी स्तुति करता है, उनको आसन साफ करके बैठाता है बहुत ही आदरपूर्वक, और बोलते हैं अब बहुत अभाग्य हमारे कि आपके दर्शन हुए, क्योंकि साधु के दर्शन यानी हमारे पे कृपा हो रही है, भगवान की कृपा आ रही है। बोलते हैं आप गए थे? बोलते हैं हाँ मैं गया था। बोलते हैं कि तो कॉबलर पूछता है, जो मोची होता है वो पूछता है तो भगवान ने क्या दिया, भगवान ने क्या उत्तर दिया आप इस मेरे प्रश्न का? बोलते हैं अरे उन्होंने तो कहा है कि इस जन्म के बाद ही तुम वापस पहुंच जाओगे वैकुंठ। तो जो मोची होता है वो भगवान की स्तुति करने लगता है, भगवान की ग्लोरी गाने लगता है, बिल्कुल झूम उठता है। तो ऐसे में फिर पूछता है कि आप जब गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे? तो वो एक बताते हैं देवर्षि नारद के भगवान तो एक सुई के छेद से, जो आई ऑफ द नीडल से, हाथी को निकाल रहे थे। और वो तो और खुश हो जाता है, बोलते हैं मेरे प्रभु तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देवर्षि नारद बोलते हैं अरे तुमने कैसे मान लिया कि ये कर सकते हैं? बोलते हैं अरे देखिए मैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, वो इस बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज से आया है, और ये जो बीज था वो किसी और बरगद के पेड़ से आए थे जिससे हजारों लाखों बीज आए थे, और ये उसमें से एक बीज से आया, और वो जो बरगद का पेड़ था वो भी एक बीज से आया। तो इस तरह से आप देखिए जो ओरिजिनल बीज हैं भगवान, उनसे कितने सारे करोड़ों ऐसे बड़े बड़े बरगद के पेड़ आए हैं जो कि बिल्कुल अणु हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, दिखते भी नहीं हैं। और भगवान की तो महिमा है, वो अपरंपार है। तो तब देवर्षि नारद को ज्ञात होता है कि भक्त की जो श्रद्धा है वो कितनी प्रबल है, वो कितनी स्ट्रांग है। तीव्रेण भक्ति योगेन, तो इसलिए हमको विद ग्रेट एंथुसियाज्म भक्ति योग में लगना चाहिए। कॉमन उसका सिंपल प्रोसेस क्या है? जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने इस कलियुग में 3 रूपों में हमें प्रकट होते हैं, हमारे ग्रॉस शरीर को। अतः श्री कृष्ण नामानि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिया, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यधः। हमारे जो सेंसेस है बड़े ही डल हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ सीइंग सच ए ग्रेट ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी एज लॉर्ड श्री कृष्ण। लेकिन जब हम अपनी जीवा को सेवा में लगाते हैं, सेवोन्मुखे ही जीवा, तो जब हम उसको एंगेज करते हैं इन टेस्टिंग प्रसादम, राइट, वी ऑल लव टू ईट, वी ऑल लव टू टेस्ट palatable things, but then when we taste prasad, the food, the bhoga that has been offered to the Lordship, and it becomes remnants, His blessings. Prasad also also means mercy. प्रसाद का एक और अर्थ है कि भगवान की कृपा। तो जब हमको वो कृपा मिलती है, मर्सी मिलती है, भगवान के आशीर्वाद मिलता है, हम जब भगवान को भोग ऑफरिंग करते हैं, तो
हम जब उसको ग्रहण करते हैं, जब हमारी जीवा उसे टेस्ट करती है, तो वो प्यूरिफाई होती है, वो कंट्रोल में आती है. ऑफ ऑल द सेंसेस, द 5 सेंसेस, टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. सो व्हेन वी कंट्रोल द टंग एंड इट गेट्स कंट्रोल बाय टेस्टिंग प्रसाद, देन हमारा स्टमक बिकम्स कंट्रोल एंड ऑल आवर सेंसेस आर इन कंट्रोल. तो इस तरह से हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्म, सो लॉर्ड कृष्णा अपने नाम रूप में आते हैं. सो अचविग्रह फॉर्म में आते हैं, नाम रूप में आते हैं, और श्रीमद् भागवतम लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. सो दिस इज ऑल्सो द थर्ड वे. एंड लॉर्ड इज एवरीवेयर. अहम सर्वस्य प्रभवो, वो हर तरफ हैं. तो देयर आर वेरियस मिसकंसेप्शंस, जो बहुत सारे गलत धारणाएं हैं लोगों में. वो कुछ इस तरह से हैं कि सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है. नाउ टुडे, आज के ज़माने में एवरीवन इज बिजी इन अ रैट रेस. हर कोई रैट रेस में लगा हुआ है. बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस? टू अटेन द गोल ऑफ लाइफ. एंड दैट गोल ऑफ लाइफ इज ऑल्सो रॉन्ग एंड wrongly understood by most people in this Kali age. Because Kali age का इफेक्ट क्या है? People are lazy, they are unlucky and they are misdirected. और इस misdirected civilization में revolution लाने के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब हैं. तो हम लोगों को पहला समझना चाहिए what is goal of life. Goal of life is not to satisfy the body, because body जो है, ये हमारा शरीर है, ये नश्वर है. It is temporary. One day or other, we'll have to relinquish this material body and go back home, right? That's the goal. We want to go back home. Yet at the same time, how can we go back home? In this life itself, we have to attain that goal, which is love of Godhead. प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रति श्रद्धा, उनसे आसक्ति, उनके लिए हृदय में उबलते भाव, जो कि प्रेम की तरह से ओवरफ्लो करने चाहिए, ओशन की तरह. हमें कॉन्स्टेंटली प्रभु का स्मरण करना चाहिए 24/7. इस तरह से जब हम भगवान कृष्ण का सदैव सेवा करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, एंड सबसे बड़ी सेवा में विप्रलंबा सेवा, इन सेपरेशन होती है, विच इज़ द मूड ऑफ गोपीज, विच इज़ जिस तरह से सद गोस्वामी ने बताया कि वो किस तरह से हर जगह वृंदावन में घूमते हुए बोले थे, हे कृष्णा कहाँ हो, हे राधे कहाँ हो, कहाँ हो वृंदावनेश्वरी, कहाँ हो यशोदानंदन. इस तरह से दे वर कॉन्स्टेंटली सर्विंग, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. हम लोगों को भी वैसे अपने लाइफ में सेट करना चाहिए, तो एवरीथिंग बिकम्स सक्सेसफुल. और जो पेंडेमिक टाइम है, इस समय हर कोई वैक्सीन निकाल रहा है, राइट? देयर सो मेनी वैक्सीन कमिंग आउट इन द मार्केट. एंड देन देयर इज ऑल्सो फियर कि अगर वैक्सीन लेंगे तो उसका रिएक्शन होगा कि नहीं. अरे बाबा, जब तुम एक छोटी सी वैक्सीन के बारे में इतना केयर करते हो, यू शुड बी मोर इंटेलिजेंट टू थिंक हमारे जो एक्शन होते हैं उसका कोई रिएक्शन होता है कि नहीं. क्योंकि अगर हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी के हिसाब से एक्शन करते हैं तो उसका पायस रिएक्शन होता है. अगर हम उसका जो फल है, उसका जो फ्रूट्स है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं. अगर हम इम्पायस तरीके से सिंफुल एक्ट्स करते हैं तो उसके इम्पायस रिएक्शन होते हैं, जो उसका हमको भोग करना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी. और जो अकर्मा है, विच इज़ भक्ति, भक्ति में जो सेवा होती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है. हम लोग पैंडेमिक के समय वैक्सीन का रिएक्शन और एक्शन एंड रिएक्शन देख रहे हैं. हम लोग को अपने एक्शंस का रिएक्शन देखना चाहिए, बिकॉज वो जो है हमको इस मनुष्य, इस भौतिक जाल में, इस मटेरियल वर्ल्ड में बाइंड करके रखता है ऑन दिस फेरिस व्हील. हवाई झूले पे घुमाता रहता है और हम लोग मिजरीज आफ्टर मिजरीज लेते रहते हैं, पैंडेमिक आफ्टर पैंडेमिक लेते रहते हैं. तो हम लोग को जागना चाहिए और समझना चाहिए कि गोल क्या है लाइफ का. और गोल लेने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस हटाना होता है, राइट? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और दे आर वेरी बिजी इन वर्किंग, राइट? दिन रात काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, IT जॉब प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं इवन. वो बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू आई रिमूव दिस स्ट्रेस? सो जब सजेशन को मिलता है कि यू शुड स्लो डाउन, जैसे नो 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 नो, डोंट टेल मी हाउ टू स्लो डाउन, गिव मी अ मेडिसिन so that I can do twice the work than what I am doing right now.
That is the shortest way to approach death, not your goal, right? But they don't care sometimes. They are bewildered. They are in forgetfulness. ऐसे बड़े बड़े philosophers का intelligence has been stolen away by माया अप्रत ज्ञाना। और फिर दूसरे जो होते हैं, जो सिंफुल एक्ट करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, वो आसुरी भावों आश्रिता। उन्होंने आसुरी भाव, डिमोनिक नेचर ले लिया है कि आज मेरे पास इतना है, मैंने अपने शत्रुओं को हरा दिया है, मेरे आसपास सारे परिजन मेरे स्वामित्व को स्वीकार करेंगे, मैं आज इतना कमा रहा हूँ, मैं कल इससे भी ज़्यादा कमाऊँगा, हर कोई मेरा मित्र बनना चाहेगा, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही करता हूँ। दे आर ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जीवा, वो वाले एस्पेक्ट से छूट जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू अप्रोच द लॉर्डशिप। क्यों? क्योंकि उनमें प्राइड आ जाता है आसुरी भाव के कारण। सो दिस इज समथिंग वी वांट टू अवॉइड। रादर वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी बिकम स्ट्रेस फ्री, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। सो हम लोग को ये देखना चाहिए कौन सबसे स्ट्रेस फ्री पर्सन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पर्सन ब्रह्मन स्टेज पे है, ही इज अबव द ड्युअलिटीज, प्रसन्नात्मा है, ही इज ऑलवेज रिजॉइसिंग। न शोचति न कांक्षति, ही डज नॉट लेमेंट अबाउट द इवेंट्स इन द पास्ट। जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में लेमेंट नहीं कर रहा है, शोक नहीं कर रहा है। And does not aspire for the future. He is not thinking of the future, aspiring for the future. भविष्य में आकांक्षाएं लेके नहीं बैठा है इस समय, उनके ऊपर विचार नहीं कर रहा है। सम सर्वेषु भूतेषु, he is equally disposed to all living entities. वो सारे जीवों को समान भाव से देख रहा है। किस तरह से कि ये सारे जो जीव हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक शरीर लिए हुए हैं, इनके हृदय में भगवान जीवों के साथ as Paramatma, right? As super soul, he is residing. There is Atma in the body and then there is Paramatma in the body. And Paramatma is so close कि आत्मा का जो डिज़ायर होता है, इससे पहले वो सेंसेस को पता लगे, परमात्मा को पता लगता है। और परमात्मा इज ओवरसियर एंड परमिटर। वो सब कुछ देख रहे हैं और वही होते हैं जो सैंक्शन करते हैं। और वो जो सैंक्शन करते हैं, वो हर चीज़ जो सैंक्शन करते हैं वो हमारे फेवर में होता है। सो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट। क्योंकि अब बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि अरे इस बंदे ने इतना गंदा काम किया, इसने इतना जघन्य अपराध किया, भगवान ने कैसे अप्रूव कर दिया। अगर भगवान वो अप्रूव नहीं करते तो वो उससे भी बड़ा जघन्य अपराध करता। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है शीला प्रभुपाद की लाइफ से। उनको उनके एक शिष्य ने, उनके एक डिसाइपल ने लेटर भेजा दैट ही वांट्स टू लीव हिज वाइफ एंड गेट मैरिड टू अनदर लेडी। तो शीला प्रभुपाद did not want to, but his response was okay. Now उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा रे शीला प्रभुपाद how could you give such a permission? बोलते हैं actually I did not want to give this permission, but अगर मैं उसको ये नहीं लिखता तो वो तब भी करता, और तब गुरु अवज्ञा का ऑफेंस हो जाता जो कि इस ऑफेंस से बड़ा है, of divorcing his present wife and marrying someone else. तो उस जघन्य अपराध ना हो, गुरु अवज्ञा उससे भी बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा ऑफेंस है। उससे बचाने के लिए मैंने उससे हाँ बोला। अब लोग जब इसी इंसिडेंट को विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं इस बात को कि प्रभुपाद ने क्यों बोला, वो उसको मिसयूज़ करते हैं उस बात को कि अरे भाई प्रभुपाद ने तो ऐसा कर दिया। अरे भाई वो गुरु जो है ना वो सारी चीज़ें अलाउ करते हैं अपने डिसाइपल्स को, ये वाले गुरु बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। ऐसा धारणा नहीं रखनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारी भक्ति के लिए क्या है, और हम जितने ज़्यादा डिसिप्लिन स्टेज में जाएंगे उतना ही हमारे को बेनिफिट होगा, राइट। इसी कारण बहुत सारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से शो किया है। ये एग्जाम्पल मैं उनमें से कुछ का 3 लीडर्स का जस्ट डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहले तो हैं एक जो लीडर थे, उनसे मिलने के लिए एक पर्सन आया, बोलते हैं कि ठीक है मैं इस शहर में रहता हूँ, आ जाओ और ये वाले स्टेशन पे आ जाओगे तो मुझे बता देना कौन सी ट्रेन से आ रहे हो। तो वो बता देता है ठीक है मैं इस ट्रेन से आ रहा हूँ। तो जब वो पहुँचता है स्टेशन पे तो वो देख रहा है इधर उधर कोई है क्या। हाँ, तो
उसके पास एक आदमी आता है, शॉर्ट सा आदमी है, यू नो, ही गॉट वेरी सीरियस फेस। तो बोलते हैं अच्छा आप, तो वो आदमी बोलता है आप सो पर्सन है ना, आप जो आ रहे थे? बोलते हैं हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो बोलता है ये मेरा संदूक है, इसे उठा लोगे? तो वो पर्सन सिंपली वो संदूक उठा के अपने सर पे रख लेता है। बोलते हैं चलिए आप मुझे ले चलेंगे। तो उसके बाद में वो वॉक करते हुए यू नो उनके घर पे आता है जिनसे मिलने आ रहे हैं। तो यह है, तो ये जो पर्सन होता है ना, जो अतिथि होता है, ये अंदर आता है, जैसे घर के अंदर दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो उनकी वाइफ होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर संदूक रखते हैं, अतिथि को बैठाते हैं, पत्नी से बोलते हैं कि पानी लाइए। तो ये जो अतिथि होता है बोलता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं मैं वही हूँ। तो ये अतिथि जो होता है ना, ये शॉक्ड कि अरे इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा क्रांतिकारी, और इसने मेरा संदूक उठाया रेलवे स्टेशन से घर तक, बिल्कुल एक शब्द नहीं कहा, कोई एरोगेंस नहीं दिखाया, कोई प्राइड नहीं दिखाया। और ये कौन थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने, उनका नाम विद्यासागर। सो ही इज टीचिंग बाय एग्जाम्पल एज एन आचार्य। आचार्य शोज बाय एग्जाम्पल, ही शोज बाय डूइंग द एक्शंस। सो हे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। बहुत सी बार लोग ऑफेंसिवली बात कर लेते हैं, बट दैट्स ओके, वी शुड नॉट ऑफेंड देम इन रिटर्न। जस्ट बिकॉज टिट फॉर टैट वाली एटीट्यूड नहीं रखते हैं। दे ट्राई टू इम्प्रूव अदर्स। अरे भाई आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे और आप डॉक्टर के सामने उल्टी कर दोगे, तो फिर डॉक्टर नर्स तो उसको क्लीन करेंगे ना, वो आपके साथ गुस्सा थोड़ी नहीं होंगे, वो तो जानते हैं कि भाई ये रोगी है, यू नो द पर्सन इज सिक, ही नीड्स टू बी क्योर्ड। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो मटेरियल भौतिक जगत में जो जनरल पीपल हैं, दे आर इन्फ्लिक्टेड विद दिस डिजीज लाइक जॉन्डिस। एंड जॉन्डिस का सॉल्यूशन क्या है? स्वीट कैंडी, शुगर कैंडी, राइट? शुगर केन की जो कैंडी होती है। लेकिन जब कोई शुगर केन की कैंडी अगर जिसको जॉन्डिस है, राइट, वो लेता है तो उसको बड़ी कड़वी लगती है, बट दैट इज द सॉल्यूशन। So after some time when we engage in devotional service, even though we don't desire, by constant engagement, we automatically get rid of the jaundice, which is like this material sickness that we have. And this candy is nothing else but the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ऐसे ही एक बार एक डेलीगेट था, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा था। तो वेट कर रहा होता है, नॉक करता है, वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं थी। तो फिर अंदर से एक आदमी आता है, बोलता है अच्छा जी आपको किनसे मिलना है? बोलता है मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं आइए। तो बोलता है नहीं नहीं आप बताइए, जब वो रेडी होंगे तो फिर मैं अंदर आऊँगा। तो बोलता है ठीक है मैं आके बताता हूँ। उसके बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, फिर अंदर से आवाज़ आती है कि आप अंदर आ सकते हैं, सो एंड सो पर्सन। तो वो उठ के दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। एंड व्हाट इज़ इट सेइंग? कि जो पर्सन ने बाहर आके उनसे बड़े विनम्र भाव से पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या पर्पस है, आप और आप अंदर आ सकते हैं मिलने के लिए। तो ये जो पर्सन था, ही वॉज नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो अपने आचरण से बताते हैं कि जो भी हमारे दरवाजे पे आता है वो अतिथि होता है, वो भगवान के समान होता है, और हमें उसका आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो सामने वाले को उसके बॉडीली फीचर से जज करते हैं। तो जो इन्फ्लिक्टेड होते हैं, जो भोगी होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं कि भाई अगर कोई लीडर है तो ही शुड बी वेरी एफल्जेंट, ही शुड बी ड्रेस्ड इन दिस मैनर, इस तरह से उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, वो इतना इस तरह से दिखना चाहिए, उसकी आवाज़ में इतना दम होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए। ऑल दिस आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली शास्त्रों में दिया हुआ है कि जो एक ज्ञानी होता है वो देखने से नहीं पहचाना जाता। जैसे सुखदेव गोस्वामी, उनको लोग पागल समझ रहे थे, अरे ये 16 साल का लड़का नंगा घूम रहा है कंप्लीटली, उसको उनको ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ तो उनको डम इस तरह से सोच रहे थे कि ये तो डम है, ये तो कुछ नहीं जानता। जबकि जैसे ही उन्होंने अपने मुंह खोला, उन्होंने वचन बोले, तब
रिवील हो गया, ये तो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये तो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ही इज़ अ रियलाइज्ड सोल, ही इज़ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी। और परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली उनकी शरण ली, उनको अपना स्पिरिचुअल मास्टर मान के उनसे इंस्ट्रक्शन लिया और भगवत धाम की प्राप्ति की। ही वॉज एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। So it is very important for us not to look at the outside characteristic of a person. How does a person look? How does a person, उसकी आवाज़ में कितना वो है, strong strength है, उसके looks कहाँ हैं, is he from India or is he from America or is he from Africa or is he from Europe? ये सारे external features हैं. Or how many years has he been performing devotional service? Even that is because ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, और वो तो छोटे से बालक थे, वो भी क्षत्रिय बालक, ये भी नहीं कि ब्राह्मण बालक। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आचार्य जो होते हैं अपने स्वभाव से, अपने आचरण से हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कैसे रहना चाहिए। ऐसे ही एक ऋषि थे, उनके पास एक साधु थे, उनके पास एक मदर अपने बेटे के साथ गई, वो बोलती हैं उनको बिसेंसेस पे करने के बाद कि आप मेरे बेटे को बताइए, वो बहुत शुगर खाता है, तो उसको बताइए कि वो शुगर कैंडी खाना बंद कर दे। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, 2 हफ्ते बाद आना। तो बोलती हैं आप अभी क्यों नहीं बता सकते? बोलते हैं 2 हफ्ते बाद आना। तो ठीक है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद जब आती है तो बोलते हैं कि अपने बेटे को सामने लाइए। तो बेटा सामने आता है, बोलता है आज से तुम शुगर खाना बंद कर दो। तो बेटा बोलता है ठीक है मैं बंद कर दूंगा। इमीडिएटली ओबीसेंसेस पे करता है, बहुत ही सिंसियरली बोलता है। बोलती है मैं तो इतने सालों से बोल रही थी, ये मानता नहीं था, आपने एक बार में ही बोला तो ये मान गया। बोलता है बहुत अच्छी बात है, उसका हृदय साफ है, इसलिए उसने ले लिया मेरा इंस्ट्रक्शन। बोलती है लेकिन आपने पहली बार जब मैं आई तब क्यों नहीं बोला, आपने 2 हफ्ते का वेट क्यों कराया? बोलते हैं कि जब तुम आई और मुझसे बोला कि उसको बोलो कि शुगर नहीं खाना, मैं उस समय शुगर खा रहा था, तो मुझे इस 2 हफ्ते में अपना शुगर खाना बंद करना पड़ा ताकि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूं। दैट इज आचार्य। ये कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। सो एन आचार्य, स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज टीचिंग अस बाय देयर एग्जांपल। सो इंडिया इज अ प्लेस ऑफ सच ग्रेट लीडर्स जिन्होंने अपना एग्जाम्पल किया है। आज के लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम लोग को इन लीडर्स को फॉलो करना चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट इमिटेट, अनुकरण नहीं अनुसरण। वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, द एग्जाम्पल्स दे आर सेटिंग। दैट इज वेयर वी कैन बिकम ग्रेट लीडर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को भक्ति योग इसलिए भी करना चाहिए कि बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं बहुत हार्ड हैं, राइट, एंड दे आर प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट टाइम्स। इस कली एज में जिसमें हम लोग की आयु 100 साल तक ही सीमित है, उसमें हमें ईजिएस्ट प्रोसेस दिया है। कृते तदध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। कृते तदध्यायते विष्णुं। इन कृत जब हम लोगों की जो आयु होती थी 1 लाख साल तक होती थी, तो उस समय लोग ध्यान करते थे, अष्टांग योग की प्रैक्टिस करते थे। जैसे प्रचेतास, दे मेडिटेट फॉर 10,000 years. Vishwamitra meditated for 60,000 years and still Menaka made him fall down. So even there was danger. After tens of thousands of years you meditate, there was danger. And we cannot do that. It is very difficult. Arjuna in Bhagavad Gita says that, my dear Krishna, the process you are telling me of this Ashtanga, of the Dhyan Yoga, it seems to be very impractical to me. Because in Dwapar Yuga, when he is seeing, he only has the age of, the people at that time were 1,000 years of age. And the austerity was present in Satyug. Tretayam yajato make. In Treta Yuga, people could engage in fire sacrifices. They could chant the mantras, and to test the mantras, they could, do the Agni mantra, and then the fire would appear. They would do the mantras and sacrifice an animal. The animal would walk out with a human body out of the fire. Draupadi, Dhishtadyumna, they were, the result of this perfect chanting of the mantras. So, and then Dwapare Paricharyam. In Dwapar Yuga, we see that people were taking to deity worship. They were doing temple worship. Lord Krishna appeared himself. They were worshipping his lotus feet. People will take on pilgrimage. Who was showing example? Viduji, he went on pilgrimage. We saw, Uddhav going on pilgrimage. We saw even,
Lord Balaram, Adi Guru, going on pilgrimage. So they would go on pilgrimage, which is taking long journeys. With pandemic times, you cannot take long journeys, but you still have the facility to do that, journey virtually, vicariously. We can be at our dham. It is our consciousness. Sometimes we talked about, people who are going to Vrindavan, they are worried about what's happening at their home in London or in US. So the consciousness is still in the material world while you are bodily in Vrindavan. While people who are in US and various other places, they are constantly meditating on the beautiful form of Shishi Radha Ras Bihari, Shishi Radha Govind Ji, Shishi Radha Gopinath Ji, Shishi Radha Madan Mohan Ji. And so our consciousness takes us directly at their lotus feet in Vrindavan. So this is where we have to understand that our consciousness should be right, and we can still practice with the speed of mind. We can engage in devotional service. Kalaota Dhari Kirtanat. In the Kali age, the prescribed method is Hari Kirtan, chanting of the holy name, and not just chanting, congregational chanting of the holy name. All we have to do it, just raise our hands and call out, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. So every one of us have an opportunity to be a leader. But who can be a great leader, who can be a rightful leader, is shown by example. Yad yad acharati sheshas tattadeve tarojanaha sayad paramadam kurute lokastad anuvartate. As great man shows by his example, the general populace follows. If you are a father or mother, you are the role model for your children. So you have to show them by your example, by making the right choices. It is not doing what you think is right, but it is doing the right thing because it is the right thing to do. That should be the motto of life. And it does sometimes take guts. It does sometimes take, determination. It does sometimes take a lot of test of our faith. But these are the times where every moment Maya is testing us. She is making sure that if you want to go to Bhagavad Dham, you have to pass all this test. She is serving. Devi he shagurumai mama maya duratyaya. Ma meviye prapadyante maya amitam taranti. The Lord Krishna is saying that this material energy of mind, she is mine, she is serving, she is following his instructions. It's very difficult to overcome. But whoever takes shelter at the lotus feet of Lord Shri Krishna, ma meviye prapadyante maya amitam taranti. They can easily cross over this ocean of nayscience. Taranti is like tarjana, bhav sagar ko tarjana. We can easily cross over because we are taking shelter at the lotus feet of Lord Shri Krishna. We are engaging in his devotional service. We are constantly in the congregational chanting, glorifying his name, form activities, pastimes, calling out to him with full faith and moving our actions in the right directions, making that movement in our life that we are focusing, we are facing the sun. Krishna Surya Sama Maya here Andhakara. So when you are looking at the sun, you cannot see any darkness because it's behind you, right? When you turn your back to the sun, which is like when we turn our back to Lord Shri Krishna, and we think that it's material energy we want to lord over, it is different than Lord Shri Krishna. That is illusion. Maya means that which is not. At that time we only see our shadow. The only thing we see by putting our back to the sun is our shadow, and that is the darkness. And the shadow is the body that material energy gives us, which is we are riding as machine, we living entities. So we have to wake up, we have to recognize and follow the examples of great leaders that we have seen, that have appeared by their own example, shown by their very nature how to be humble, how to be respectful, how to be tolerant, how to be looking for the benefit of everyone. And before giving instructions, they are first embracing it. By their own example, they are teaching us. So these are some of the essential lessons we wanted to cover today. These are the lessons from Bhagavad Gita, and how various personalities, and Srila Prabhupada means at the age of 69, he came to America to spread what? To carry out one instruction of his spiritual master. That was given to him before he even got initiated. His spiritual master said, you should spread this knowledge in English language.
to the Western world. So he wanted to carry it out. And every time everyone was glorifying him, calling out Jai Prabhupada, he would chant out as well. He would call out Jai Prabhupada. People would get confused. Is he glorifying himself? No. Then they understood. He is calling out to his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, saying that it is because of your mercy that I am able to do all these things. He always gave credit to others, never took credit for himself. And everybody glorifies him because he was the perfect instruments in the hand of Lord Shri Krishna. He was a perfect instrument following the instructions of his spiritual master. And so we have to become a perfect instruments in his service, in serving Lord Shri Krishna, in carrying out the instructions that he has imparted to us. With this, we would like to say, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavind ki jai, Nitai Go Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna.